अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ इंग्लिश राइटर, अबाउट अ राइटर हु बिलोंग टू इंग्लैंड. In last video we have done about Mumtaz Shahnawaz. She was belong to Pakistan. She was one of the Pakistani writer. So today we are going to know about English writer, about his work, about his fascinations, his imaginations and perception, his ideas. We are going to know all about Robert Bridge. Robert Bridge was one of the writer who born in 1840 and died in 1930. He was related and concerned to the modern era, and maybe he considered as a last great Victorian because he carried all the tradition, all the culture of Victorians. So whenever he wrote about anything, he wrote in a way of Victorians. He didn't write in a modern era writer. He wrote as a Victorian era writer because he characterized all the Victorian points, Victorian characteristics. Like he wrote in his work about upper class, elite class, about privilege के बारे में उन्होंने लिखा, अपर क्लास के बारे में, elite क्लास के बारे में उन्होंने लिखा. So this is why many of other critics criticize his work in good way, in positive way or in negative way. They remarked his work as Elizabethan simplicity. So we can say that Elizabethan simplicity is something like the writing which does not work. Any writing, any work, any literary work which actually does not work. उन्होंने इस तरह से इन्हें रिमार्क्ड किया, बहुत से राइटर ने इन्हें क्रिटिसाइज्ड किया because it didn't write all about the modern crisis. If we compare the Robert Bridge with other writers, so other writers in modern era, they wrote all about the globalization, they wrote all about the concerns of modern era, they wrote all about the troddens, about the downtrodden, about the oppressed people, about the individualism, they wrote about the naturalism, all things. They wrote about thriving and development of science and technology, globalization, and what we can say that all the crises which came into modern era, the development day by day and the industrialization. But he is one of the writer who didn't write all about these things. His writing were very different. So many of the critics criticize about his writing because they thought he must write about the modern crisis, which he didn't do all that. So we are going to know about this writer. Be with me. Let's go to the recording. So Robert Bridge, though a 20th century poet, may be considered as the last of the great Victorian as he carried on the Victorian tradition. As I told you कि वो विक्टोरियन ट्रेडिशन और कल्चर का इतना ज़्यादा उनमें समाया हुआ था कि सब कुछ के उन्हें अगर इस तरह से कहा जाए कि लास्ट ग्रेट विक्टोरियन, तो ये गलत भी नहीं होगा और मे भी कि उन्हें ऐसा कहा जाए. ही इज़ नॉट अ पोइट ऑफ द मॉडर्न क्राइसिस. वो मॉडर्न क्राइसिस के पोइट नहीं थे जैसा कि बाकी तमाम राइटर्स ने मॉडर्न क्राइसिस के बारे में लिखा था. एक्सेप्ट फॉर इज मैट्रिकल इनोवेशन, सिवाय अपने मैट्रिकल जो इन्वॉल्वमेंट थी इनोवेशन में, इन्वेंशन में, उसके सिवाय उन्हें मॉडर्न पोइट कहना सही नहीं था. बिलोंगिंग टू द एरिस्टोक्रेसी, हिज वर्क इज़ आल्सो कंसर्न विद द लेजर्ड एंड हाईली कल्टिवेटेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ सोसाइटी. उन्होंने मोस्टली अपर क्लास, एलीट क्लास की बात की थी अपने वर्क में. वो राइटर तो थे मॉडर्न एरा के, लेकिन उनके जो मोस्टली राइटिंग थी वो विक्टोरियन एरा से ज़्यादा उसके करैक्टरिस्टिक्स उसमें नज़र आते थे. तो इसीलिए उन्होंने अपने वर्क में इसी काम में सिर्फ बिज़ी रहते थे कि वो हाई क्लास और अपर क्लास, फुल कल्चर्ड क्लास को जो है वो शो ऑफ करते थे अपने वर्क में. In his poetry, we find beautiful description of English landscapes, clear streams, gardens, song of bird. उनके वर्क में मोस्टली जो है नेचुरल वर्क उनका होता था, मतलब नेचर पे उनका वर्क होता था, जैसे कि लैंडस्केप्स को, क्लियर स्ट्रीम्स को, सॉन्ग्स ऑफ बर्ड को, चिपिंग ऑफ बर्ड्स को वो शो ऑफ करते थे अपने वर्क में. द वर्ल्ड दैट ही डिपिक्ट in is haunted with the memories of the
बाय द मेमोरीज ऑफ द क्लासिक्स। क्लासिक्स की जो मेमोरीज होती थी, क्लासिक्स हम कहते हैं एक ऐसा वर्क जो इंतहाई मतलब हाईली एक्सीलेंस ऑफ द वर्क, उससे हम कहते हैं क्लासिक। उनका वर्क जो है इस तरह से वो डिपिक्ट करते थे अपने वर्क को वो प्री ऑक्युपाइड होता था वो वर्क ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री एंड डिकोरस लव मेकिंग। म्यूज़िक के बारे में होता था, डिकोरस लव यानी कि एक आराइशी अफेक्शंस को वो शो ऑफ करते थे। ही कैरीज ऑन द ट्रेडिशन ऑफ मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन अगेंस्ट विच द यंग मैन ऑफ हिज टाइम वर इन ओपन रिवॉल्ट। उन्होंने वो जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता था उनका वर्क, जो ट्रेडिशंस उन्होंने एक्सेप्ट किए थे वो मिल्टन के थे, वर्ड्सवर्थ के थे और टेनिसन के थे। अब वर्ड्सवर्थ के ट्रेडिशन हमें शो ऑफ इसमें हो रहा है कि उन्होंने नेचर पे लिखा था, और मिल्टन का ट्रेडिशन भी शो ऑफ हो रहा है और टेनिसन का भी। We do not find in his poetry any bold attempt to face the critical problems facing his generation। जैसा कि हम जानते हैं कि वो मॉडर्न पोइट थे, तो मॉडर्न जनरेशन के बारे में उन्हें लिखना चाहिए था, जिसके बारे में उन्हें बोल्ड अटैम्प्ट्स लिखने चाहिए थे। बाकी तमाम राइटर्स का ये कहना है कि उनका जो वर्क था उसमें बोल्ड अटैम्प्ट्स नहीं थे। इवन हिज ग्रेटेस्ट पोएम द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी डज नॉट कंटेन एनी कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ डीप फिलॉसफी। इवन उनका जो सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट वर्क जो था द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, उसमें भी उन्होंने कोई फ़िलॉसफी के बारे में कोई बोल्ड अटैम्प्ट्स नहीं दिए थे। दैट इज़ वाई विलियम बटलर येट्स रिमार्क दैट देयर इज़ एम्प्टीनेस एवरीवेयर इन द पोइट्री ऑफ ब्रिज। तो डिफरेंट क्रिटिक्स ने उन्हें डिफरेंट तरीके से क्रिटिसाइज़ किया उनके वर्क को। यहाँ पे विलियम बटलर येट्स ने ये रिमार्क किया कि उनका वर्क जो है एम्प्टी था। एम्प्टी किस वजह से? कि उनके वर्क में बोल्ड अटैम्प्ट्स नहीं थे, जैसा कि मॉडर्न एरा में बाकी तमाम राइटर्स के हुआ करते थे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिज इन मॉडर्न पोइट्री हाउएवर इज़ इन हिज मैट्रिकल इनोवेशन। इसकी जो इम्पोर्टेंस थी हमारे राइटर की, ब्रिज की, इनकी जो इम्पोर्टेंस थी मॉडर्न एरा में, इनकी मॉडर्न पोइट्री में इतने ख़ास बोल्ड अटैम्प्ट्स नहीं थे, एम्प्टीनेस था उनके वर्क में। उनके वर्क को एलिजाबेथन सिंप्लिसिटी भी कहा गया कि जो कि वर्क नहीं करता था। तो अलावा इसके कि उनका जो एक मैट्रिकल इनोवेशन था, इन्वेंशन थी, उसके सिवाय उसमें उनमें कोई ऐसी स्पेशलिटी उनके वर्क में नज़र नहीं आती थी। He was lover of old English music and many of his early lyrics are obviously influenced by the Elizabethan lyrics, especially Thomas Campbell। वो ख़ुद जो है इंग्लिश म्यूज़िक के, ओल्ड इंग्लिश म्यूज़िक के जो है लवर थे, और विक्टोरियन एरा इंग्लिश के जो थे वो म्यूज़िक के जो थे वो लवर थे बहुत ज़्यादा, और वो ख़ुद इन्फ्लुएंस करते थे एलिजाबेथन लिरिक्स से, स्पेशली जो थॉमस कैम्पबेल लिरिक्स था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही वॉज अ रिमार्केबल प्रोसोडिस्ट। वो एक रिमार्केबल प्रोसोडिस्ट थे, यानी कि उनकी जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि उन्होंने स्टडी किया था पोइटिक मीटर को। प्रोसोडिस्ट मीन पोइटिक मीटर को जो है उन्होंने डीप स्टडी किया था। द फर्स्ट इंग्लिश पोइट हु हैड अ ग्रास्प ऑफ फोनेटिक थ्योरी। ये एक फर्स्ट इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने होल्ड किया था एक फोनेटिक थ्योरी को, यानी स्टडी ऑफ फोनीम्स जो था उसको उन्होंने होल्ड किया था। ही वॉज टायरलेस एक्सपेरिमेंट इन वर्ड्स फॉर्म। उनकी जो वर्ड्स फॉर्म में उनका जो वर्क था वो इंतहाई शानदार था, डैज़लिंग था। ही हिमसेल्फ एडमिटेड व्हाट लेड मी टू पोइट्री वॉज द इनएग्जॉस्टिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉर्म। उन्होंने ख़ुद ये एडमिट किया है, ये कहा है कि पोइट्री में किस चीज़ ने उन्हें लेड किया है कि वो जो इनएग्जॉस्टिबल सेटिस्फैक्शन थी, वो जो एंडलेस सेटिस्फैक्शन थी, ना ख़त्म होने वाली जो एक सेटिस्फैक्शन होती है, उस चीज़ ने उन्हें पोइट्री में बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया। द मैजिक ऑफ स्पीच लेइंग एज इट सीम टू बी इन द मास्टरली कंट्रोल ऑफ द मटेरियल वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में वो वर्क करते थे, हॉपकिंस की इन्फ्लुएंस में। एज आई टोल्ड यू कि ये अपने बहुत से फ्रेंड से और बहुत से एरा के ऐसे राइटर हैं जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ से, टेनिसन से,
हॉपकिंस से, इन सब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते थे। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।